Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are fine and safe. Today we are going to complete our chapter number 4, Measures of Dispersion. Symmetry and skewness. Today, first of all, we discuss skewness. The measures of central tendency and dispersion do not indicate whether the distribution is symmetric or not. We may come across many frequency distributions which may have some central tendencies and dispersions, but they differ widely in their nature and composition. When the items in a series are dispersed about the central value in even or regular fashion, the items show a perfect balance on either side of the central tendency. The frequency curve representing the distribution will be symmetrical. The right or left side of the curve of the frequency distribution will give mirror shadow of the left or right side. If a distribution is not symmetrical, it is known as skewed or asymmetrical distribution, in which the balance is thrown away from the center on either left or right side. In short, the lack of uniformity is called dispersion and lack of symmetry is called skewness. We define skewness as the lack of symmetry is called skewness. In other words, a distribution which is non-symmetrical is called a skewed distribution. Now, symmetrical distribution. A distribution is said to be symmetrical if the value equidistant from the center have equal frequencies. Or a distribution is said to be symmetrical if mean is equal to median is equal to mode. Second, the two tails of the curve of the distribution are equidistant from the center. Its graph is bell-shaped. Q3 minus median is equal to median minus Q1, or Q3 plus Q1 minus 2 median is equal to 0. M3 is equal to 0, or B1 is equal to M3 square divided by M2 cube is equal to 0. The curve on the ordinate at the center is folded, the two halves will coincide, or skewness is equal to 0. जब स्क्यूनेस 0 होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी. ठीक है. और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर हाफ से आप कर्व बेल शेप्ड कर्व होता है, अगर उसको आप फोल्ड करते हैं तो वो क्या होगा, वो दोनों हाफ जो हैं दे आर कॉन्साइड्स. ठीक है. और क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे, या फिर सेंटर से जो वैल्यूज हैं ग्राफ में जैसे आप देख रहे हैं बेल शेप्ड जो है इसका कर्व है, और वैल्यूज फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर साइड आर फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, या फिर उसको हम लिख सकते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन इज इक्वल टू 0. और उसमें क्या होगा कि M3 द ऑड ऑर्डर मोमेंट्स आर 0 इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड B1 शोइंग स्क्यूनेस. ठीक है. और स्क्यूनेस क्या होगी, वो 0 होगी. तो जब स्क्यूनेस 0 होगी तो क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी. ठीक है. Positively skewed distribution. If right tail of the frequency curve is longer, it is called right hand side or positively skewed distribution. For positively skewed distribution, mean is greater than median is greater than mode. The coefficient of skewness is positive. Q3 minus median is greater than median minus Q1, and B1
is equal to m3 square divided by m2 cube is greater than 0, then it is positively skewed distribution. ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? जब मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मोड से। और इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो क्या होंगे? Q1 और Q3 वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और Q3 माइनस मीडियन ग्रेटर होगा मीडियन माइनस Q1 से, या फिर Q3 प्लस Q1 इज ग्रेटर देन 2 मीडियन एंड इट इज ग्रेटर देन 0। और B1 क्या होगा? इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, नाउ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। द लेफ्ट टेल ऑफ द frequency curve is longer. It is called left hand side or negatively skewed distribution. For negatively skewed distribution, mean is less than median is less than mode. The coefficient of skewness is negative, and Q3 minus median is less than median minus Q1, or Q3 plus Q1 minus 2 median is less than 0. And B1 is equal to M3 square divided by M2 cube is less than 0. ठीक है, क्या होगा कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? जब मीन लेस होगा, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनियस जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। Q3 माइनस मीडियन इज लेस देन मीडियन माइनस Q1। ठीक है, और β1 जो है इट इज लेस देन 0, तो तब डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। The measures of skewness indicate the direction, positive or negative, and extent of departure from symmetry. These measures may be absolute or relative. Absolute skewness is equal to mean minus mode. Sometimes mode is ill-defined, then using the empirical relation, that is, mode is equal to 3 median minus 2 mean. Absolute skewness is equal to 3 into mean minus mode. Absolute skewness is also equal to Q3 plus Q1 minus 2 median. Absolute skewness is also equal to M3. These measures of absolute skewness are not suitable for making comparison of skewness in two or more distributions of different units of measurement. To avoid the difficulties, we standardize the absolute skewness called the relative measures of skewness or coefficient of skewness. Pearson's coefficients of skewness is given by skewness is equal to mean minus mode divided by 3, and the other formula of skewness, Pearson formula, skewness is equal to 3 into mean minus median divided by standard deviation, and skewness is also denoted by B1, and it is equal to M3 square divided by M2 cube. The second formula is Bowley's coefficient of skewness, and it is given by skewness is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. If skewness is equal to 0, the distribution is symmetrical, right? If skewness is greater than 0, the distribution is positively skewed. If skewness is less than 0, the distribution is negatively skewed. Okay. Now the next topic is kurtosis. The term kurtosis is the degree of peakedness or flatness of distribution usually taken relative to a normal distribution. Measures of kurtosis.
Moment ratio B2 is equal to M4 divided by M2 square. अब कर्टसेस जो है वो किससे शो होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, B2 से, ठीक है। B2 showing कर्टसेस एंड B1 showing skewness, ठीक है। B2 is equal to M4 divided by M2 square is the measure of kurtosis, which tells us the extent to which a distribution is more peaked or more flat top than a normal curve. If B2 is equal to 3, the curve is mesokurtic or normal or symmetrical. If B2 is less than 3, the curve is platykurtic. If B2 is greater than 3, the curve is leptokurtic. अब ये जो आपको लेफ्ट साइड पे फर्स्ट जो नज़र आ रहा है ये क्या है, ये आपका कर्व कैसे होगा, ये जो है ये आपका कर्व सिमेट्रिकल कर्व है, ठीक है। और उसके बाद ये सिमेट्रिकल कर्व है या इसको आप मीजोकर्टिक कर्व कहते हैं, ठीक है, मीजोकर्टिक कर्व। और इसी तरह से B2 अगर लेस देन 3 है तो थोड़ा सा फ्लैट आपका कर्व होगा और इसको आप क्या कहेंगे, प्लेटिकर्टिक, ठीक है, ये प्लेटिकर्टिक। और B2 ग्रेटर देन 3 होगा तो तब कौन सा है, लेप्टोकर्टिक कर्व, लेप्टोकर्टिक होगा, ठीक है, कर्व इज लेप्टोकर्टिक। Example 4.38 on your from your book on page 184. Question is find Pearson's first and second coefficient of skewness, the quartile coefficient of skewness and the moment coefficient of skewness, and B1 for the weight distribution of 120 students इन एग्जाम्पल 4.13। ये पीछे जो हमने एग्जाम्पल जिस पे काफ़ी सारी हमने जो है वो चीज़ें अप्लाई की और उसमें मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन के इस चैप्टर में भी हमने उसमें क्वार्टाइल्स वगैरह सब कुछ फाइंड किया। तो उसी डाटा को 110 to 19, 120 to 129 वो वाला डाटा जो है वेट्स का और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, उसमें हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। उस डाटा का मीन भी हमने फाइंड किया जो कि 156.17 पाउंड्स हमारे पास आया। मीडियन भी हमने उस पर अप्लाई किया, वो भी हमने फाइंड किया 153.50। और मोड भी उस डाटा से हमने फाइंड किया, वो है 147.36 पाउंड। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने किया जो कि इक्वल आया 19.03। ये हम पीछे सारा जो है कैलकुलेट कर चुके हैं इस डाटा से, ठीक है। अब हमने इस पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के कल पेयरसन के जो दो फार्मूले हमने पढ़े वो हमने इस पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। और दूसरा इस पे क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कि बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने इसमें फाइंड करना है और मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो भी हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पियर्सन्स फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और उसका फार्मूला है स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास मीन की वैल्यू भी है और मोड की वैल्यू भी है और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने पीछे कैलकुलेट किया है उसको, और इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूला में तो हमारे पास स्क्यूनेस जो है वो आ जाएगा जो कि 0.463 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला या फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पियर्सन्स का, ठीक है। अब सेकंड जो पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फार्मूला क्या है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास मीन की वैल्यू भी मौजूद है, मीडियन की भी है, इस फार्मूला में पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू तो हमारे पास स्क्यूनेस आ रही है 0.421। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने हमसे क्या कहा है, अब इसको हम देख सकते हैं। सिंस द कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और स्क्यूड टू द राइट,
ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ग्रेटर है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब सेकंड उसमें हमने फाइंड करना है द क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, उसका क्या फार्मूला है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन। ठीक है, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब इसमें हम क्वार्टाइल भी, इस डेटा का हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, Q1 भी, Q3 भी, और जो है हम इस 3.21 में हम ये, और 3.23 में ये हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। मीडियन भी हमने कैलकुलेट किया है, मीडियन की वैल्यू हमारे पास है 142.36, और मीडियन की वैल्यू है 153.50, और Q1 की वैल्यू हमारे पास है 167.83, और Q3 की वैल्यू है 142.36। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने उसमें पुट कर दी, और Q3 माइनस Q1, नीचे हमने ये वैल्यूज़ पुट की। Q3 की वैल्यू 167.83 है, तो हमारे पास क्यूनेस आ गई 0.125। अब थर्ड उसने कहा है कि मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, B1 के इक्वल है। B1 का क्या फार्मूला है, M3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 क्यूब। ठीक है, अब M3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, M3 भी हम इसका कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे मोमेंट में, 4298.08 ये आ रहा है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और हमारे पास M2 जो आ रहा है वो हमारे पास है 362.28। ठीक है, उसका हम क्यूब ले लेंगे, उसका हमने क्यूब ले लिया। तो इसको डिवाइड करने से हमारे यहाँ पे मैंने क्यूब, शायद वो मिस हो गया मैंने लिखने से, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया B1 का 0.3885। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.39। 4.39 एग्जाम्पल है, ये आपके पेज 185 के ऊपर है बुक में, वो आप देखें। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टसिस, B2 आपने फाइंड करना है, B2 फाइंड करना है। और वहाँ से आपने सेकंड इसमें जो है, इसमें आपने देखना है कि हमारे पास M2 हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। B2 का पहले फार्मूला लिखें, क्या फार्मूला है, M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, M4 की वैल्यू चाहिए और M2 स्क्वायर, M2 की वैल्यू चाहिए। पीछे हम M2 भी हमने कैलकुलेट किया इसी डाटा से, 4.35 का बी पार्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ हमने ये M2 भी कैलकुलेट किया और M4 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वहीं से हमने ये वैल्यूज़ ले ली और इस फार्मूला में पुट की, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.18, जो कि B2 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 जब होगा तो तब क्या होगा, कर्व इज लेप्टोकर्टिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कर्व क्या है, लेप्टोकर्टिक है। एग्जाम्पल है 4.42 और 4.43, ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4.42 एग्जाम्पल है, गिवन समेशन एफ इज इक्वल टू 120, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 296, मोड इज इक्वल टू 2.944 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1.4884। ठीक है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, आपने इन वैल्यूज़ को देखना है, आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं आपकी, आपने उसी के मुताबिक आपने फार्मूला जो है वो चूज़ करना है। अब स्क्यूनेस का फार्मूला यहाँ पे कौन सा आ सकता है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू भी है, मीन की भी गिवन है और मोड की भी गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला उसमें यूज़ करेंगे। अब मीन हमारे पास जो वैल्यू है 2.467 माइनस मोड है हमारे पास 2.944 डिवाइडेड बाय वेरिएंस हमें दिया गया है, हम उसका अंडर रूट ले लेंगे, 1.4884 का अंडर रूट लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.2184। तो इस पे डिवाइड करेंगे तो स्क्यूनेस हमारे पास आ जाएगा
5 जो कि इक्वल टू माइनस 0.3915 जो कि इक्वल, हम उसको अप्रोक्सीमेट इक्वल कर देते हैं माइनस 0 पॉइंट, राउंड ऑफ करने के बाद 0.4 के, माइनस 0.4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.43। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 17.5 ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0.3, 74, 45 एंड 1 to 5. Find whether the distribution is leptokurtic और platykurtic। ये 2011 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास M3 जो है, ये हम पीछे ये उसने खुद बताया है, M3 जो है वो M1 प्राइम जो है वो 0.3 है, M2 प्राइम की वैल्यू 74 बताई हुई है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन है ये हमारे पास। ठीक है, और M3 प्राइम जो है वो 45 है, और M4 प्राइम हमारे पास M4 प्राइम की वैल्यू है हमारे पास 12125 और X की वैल्यू है 17.5। अब हमें पता है, हमने मोमेंट्स अबाउट मीन पहले हमें चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम B2 फाइंड करेंगे और B2 का फार्मूला है M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर। हमें M2 चाहिए और M4 मोमेंट, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हमने फाइंड करना है। जबकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो M1 जो है वो 0 होगा और M3 भी M3 जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मोमेंट्स अबाउट द मीन हमने फाइंड करने, M1 क्या है 0 हो जाएगा और M2 जो है उसमें वैल्यूज हम, तो वो वैल्यू M2 की हमारे पास आ रही है 73.91। ठीक है, इसी तरह से M3 हम कैलकुलेट कर लेंगे और M4 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस फार्मूला में पुट करेंगे तो B2 हमारे पास आ रहा है 2.217। अब B2 क्या है, इट इज लेस देन 3। ठीक है, सो इट इज प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्लेटिकर्टिक है, व्हेन B2 इज लेस देन 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। Question number 4.24 from exercise. The question is, the daily income of 233 employees range from rupees 0 to rupees 18. They are grouped in 9 classes with a common interval of rupees 2 and the class frequencies from the lowest to the highest are 5, 39, 69, 41, 29, 22, 16, 7 and 5. फाइंड बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो क्लासेस, इसमें जो उसने रेंज हमें बताई है 0 से 18 तक की, इसमें क्लासेस कैसे होंगी और 9 क्लासेस आपने बनानी है, तो किस तरह से बनेंगी। ठीक है, और ₹2 का क्लास इंटरवल है, यानी 2 का क्लास इंटरवल साइज क्या बताया उसने, 2 बताया हुआ है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसीज ही हैं, फ्रीक्वेंसीज भी उसने बता दी हैं। ठीक है, अब इन फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने क्लासेस खुद इसमें बनानी है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 एंड 16 to 18। ये क्लासेस 9 क्लासेस बन गई। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी का सम क्या है उसने बता दिया है और हम खुद भी प्लस करके देख सकते हैं। 233 हमारे पास समेशन एफ आ रहा है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फार्मूला है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है और मीडियन हमें चाहिए इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के लिए। ठीक है, तो स्क्यूनेस का जो बाउलेस का फार्मूला है उसके मुताबिक हमें Q1, Q3 और मीडियन की वैल्यूज चाहिए। तो हम सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ Q1 आपको पता है कैसे, आप पीछे करते आए हैं, पिछले चैप्टर में आपने ये किया है। और Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने Q1 कैलकुलेट किया, पहले Q1 ग्रुप आप फाइंड करेंगे, फिर Q1 का ग्रुप डाटा का फार्मूला आपने
उसमें पुट करना है और Q1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो है वो Q3 फाइंड करना है। अब पहले तो आप Q3 ग्रुप फाइंड करेंगे। किस तरह से करेंगे, जैसे आपने पीछे किया है, तो वैल्यूज ऑफ 3n डिवाइडेड बाय फोर्थ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए या मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लिख के एज इट इज़ लिखेंगे और बाकी उसमें अगली जो है वो ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 233 जैसे सम आ रहा है, ये लास्ट वैल्यू 233 होगी। अब इससे हमने Q1 फाइंड कर लिया और फिर हमने Q3 फाइंड किया। इसमें हमने फर्स्ट में जो Q1 ग्रुप है वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 58.2 फिफ्थ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 58.25 जो है ये देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है। 113, 44 तो छोटा है, अब 113 में लाई कर रहा है, उसके सामने कौन सी क्लास है, 426। ठीक है, अब आपने Q1 का ग्रुप डाटा का फार्मूला लगाना है, उसमें ये वैल्यू सारी पुट करनी है, Q1 आ जाएगा। फिर Q3 फाइंड करने के लिए पहले Q3 ग्रुप फाइंड करेंगे और उसी तरह से फार्मूला क्या है, 3n डिवाइडेड बाय फोर्थ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे आप जो है वो Q3 ग्रुप फाइंड कर लेंगे। फिर Q3 का जो है वो ग्रुप डाटा का फार्मूला हम उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, L प्लस एच ओवर एफ 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी। ठीक है, अब इसमें L क्या होगा, अब क्लास कौन सी आई थी, Q3 जो ग्रुप था 8 to 10 और इसमें लोअर लिमिट क्या है, 8 है। L जो है आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप। ठीक है, वो 8 है प्लस H क्या है, इसमें क्लास इंटरवल साइज 2 था और फ्रीक्वेंसी उसके सामने इस क्लास के सामने जो आ रही है वो है 29। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी है 29, वो पुट कर लेंगे और 3n डिवाइडेड बाय 4 आया था 174.75 माइनस। अब देखें जिसमें ये लाइक आ रही थी ये वाली क्लास, उसके ऊपर वाली एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखते होते हैं C की जगह, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 154 है। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q3 आ रहा है 9.43। ठीक है, फिर हमें मीडियन चाहिए। अब मीडियन हम फाइंड करेंगे, ग्रुप डाटा है हमारे पास, मीडियन ग्रुप पहले इसी तरह फाइंड करेंगे। फिर हमारे पास मीडियन का जो ग्रुप डाटा का फार्मूला है उसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी, तो मीडियन हमारे पास आ गया 6.17। ठीक है, अब हमने बाउलेस कोएफिशिएंट का जो फार्मूला है उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। इस सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया 0.294। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस or of a distribution is 0.32, its mean is 29.6 and mode is 24.8, find the value of standard deviation। अब कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का इसके मुताबिक फार्मूला कौन सा है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है, इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ रहा है 15। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। The question is, for a moderately skewed distribution, the mean is equal to 50, coefficient of variation is equal to 0.40 and Pearson's skewness is equal to minus 0.40. Find the value of median, mode and standard deviation। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है, S ओवर एक्स बार।
इंटू 100। ठीक है, अब एक्स बार हमें मीन 50 दिया हुआ है, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन 0.40 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हमारे पास आ रहा है 0.20। ठीक है, अब स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है? स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 50 माइनस मोड, और स्क्यूनेस हमारे पास स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है? -0.40, -0.40, ये स्क्यूनेस हमारे हमें दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, वो पुट कर दी, माइनस मोड हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20 जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले से। ठीक है, वो 0.20 है, तो हमारे पास मोड यहाँ पे आ जाएगा 50.08। ठीक है, स्क्यूनेस का फार्मूला है इट इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्क्यूनेस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और 3 इंटू मीन हमारे पास 50 है, माइनस मीडियन हमें नहीं पता, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो है हमारे पास 0.20। तो इससे हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था? मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो तीनों हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कर्ल पियर्सन फर्स्ट फार्मूला, कर्ल पियर्सन सेकेंड फार्मूला एंड बाउलेस फार्मूला। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज जो हैं इस पे अप्लाई करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को ये मैंने कराए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने खुद से कराए हैं, पेपर्स में से ये कराए हैं, पेपर्स में ये आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपने ये फाइंड करना है, क्लासेस आपको गिवन है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 एंड 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने जो फाइंड करनी है चीज़ें, कर्ल पियर्सन का फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है? स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमें मीन भी चाहिए, हमें मोड भी चाहिए, वो हम फाइंड करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, हम तीनों चीज़ें इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, मीन हमारे पास क्या फार्मूला है? जो भी फार्मूला इसमें आप मीन का यूज़ करें, आपकी मर्जी है, मैंने यू वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच। अब h इसमें क्या है? इंटरवल देखें, 25 में से 24 को माइनस करो, कितना इंटरवल आ रहा है? 5 का इंटरवल है इसके अंदर। ठीक है, और समेशन एफ यू, अब समेशन एफ यू कैसे? यू का कॉलम हम फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई और वो 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से यू हमने फाइंड किया, एक्स माइनस, अब एक्स हमने फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट्स जो हैं वो हमने फाइंड किए। ठीक है, उसमें 37 जो है मिड वैल्यू को हमने एज अ एज्यूम्ड मीन लिया। एक्स माइनस ए ओवर यू की वैल्यू क्या होती है? यू किसके इक्वल है? एक्स माइनस ए ओवर एच के इक्वल है। एच हमारे पास 5 है और ए हमारे पास 37 है। हर एक्स की वैल्यू में से 37 को माइनस करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये यू आ गया। ठीक है, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए मीडियन के लिए, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर एफ यू का कॉलम और एफ यू स्क्वायर का कॉलम हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, और कोडिंग मेथड है, क्योंकि ये कोडिंग फार्मूला है, तो मीन जो है हम कोडिंग मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि इक्वल है ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच। इसमें ए की वैल्यू 37 है, समेशन एफ यू हमारे पास है 489 डिवाइडेड बाय हमारे पास समेशन एफ है 1000 इंटू एच है हमारे पास 5। ठीक है, तो एक्स बार हमारे पास आ जाता है 39.445। ठीक है, फिर इसके बाद हम मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड का क्या फार्मूला है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन इंटू एफ एम माइनस एफ टू।
अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 235 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, और इसके सामने जो क्लास है वो है 39.5 टू 44.5। ठीक है, ये क्लास है हमारे पास। तो लोअर लिमिट एल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 39.5 प्लस एफ एम। एफ एम, अब इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ एम हो जाएगी, और इससे प्रीवियस जो है वो आपकी F1 हो जाएगी, और नीचे वाली F2 हो जाएगी। ठीक है, अब F1 हमारे पास क्या है यहाँ पे? F1 जो है वो है 235। ठीक है, FM 235 है, और माइनस F1 जो है वो है 227, और F2 है 216। और H हमारे पास 5 है। तो ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट की तो हमारे पास मोड आ गया 40.9815। बच्चों, ये आपने देखा है आपकी पिछले जो चैप्टर था उसकी भी आपकी रिवीजन हो रही है साथ साथ, कि मीन मीडियन मोड आपने रिवाइज कर ली एक दफ़ा फिर। ठीक है, तो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आपने करना है, आपकी पिछले चैप्टर की भी रिवीजन हो रही है साथ साथ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया, उसका फार्मूला है अंडर रूट समेशन एफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर इनटू एच। ठीक है, अब एच क्या है? यहाँ पे 5 है, और समेशन एफ यू स्क्वायर क्या होगी? समेशन एफ यू स्क्वायर हमारे पास है 2113 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 1000 माइनस 489 डिवाइडेड बाय 1000 और होल स्क्वायर है उसका, इंटू 5। इसका सारे को सॉल्व करने के बाद इसका अंडर रूट लिया, फिर उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है 6.8445। अब कर्ल पियर्सन का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है हमारे पास स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन की वैल्यू आ रही है आपके पास 39.445 माइनस जो मोड है उसकी वैल्यू है 40.9815 डिवाइडेड बाय एस। तो ऐसे भी गर्म एस की जो फार्मूला है वो आपके पास है 6.8445। तो आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी माइनस 0.2245। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला ऑफ कर्ल पियर्सन। अब जो सेकंड फार्मूला है कर्ल पियर्सन का वो है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। अब मीन की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे, अब हमें वैल्यू चाहिए मीडियन की। ठीक है, अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीडियन ग्रुप, क्योंकि ग्रुप फार्मूला है हमारे पास, ग्रुप डाटा है। ठीक है, ग्रुप डाटा है और हमने ग्रुप डाटा के लिए जो है मीडियन कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए पहले मीडियन ग्रुप फाइंड होगा, फिर उसके बाद मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला हम लगाएंगे। वो हमने लगाया और उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट की, तो मीडियन हमारे पास आ रहा है 39.6067। ठीक है, तो कर्ल पियर्सन का सेकंड जो फार्मूला है उसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की, तो स्क्यूनेस हमारे पास आ रही है माइनस 0.0707। ठीक है, अब हमने जो है बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें Q1 चाहिए और Q3 चाहिए। मीडियन तो हमने फाइंड कर लिया। Q1 ग्रुप और फिर Q1 जो है ग्रुप डाटा का फार्मूला हम पुट करेंगे, Q1 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद Q3 ग्रुप फाइंड करेंगे, फिर Q3 जो है वो हमने फाइंड किया। ठीक है, Q3 की वैल्यू Q1 हमारे पास आ रहा है 34.0872 और Q3 की वैल्यू आ रही है 44.963। तो बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूला है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब Q3 44.963 प्लस Q1 है 34.0872 माइनस 2 इंटू मीडियन की वैल्यू 39.6067 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। उनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ रहा है माइनस 0.01495। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। भी
आपको मैं पीछे ये सारा बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम कर्ल पियर्सन सेकंड फार्मूला जो है कर्ल पियर्सन का वो हमने पुट किया, उसमें वैल्यूज़ हमने उसके लिए मीडियन कैलकुलेट किया, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास स्क्यूनेस का जो आंसर आ गया, स्क्यूनेस आ गई -0.0707। फिर हमें बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करने को कहा गया है तो क्वेश्चन में, तो उसका फार्मूला हमारे पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 है। तो उसके लिए मीडियन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, Q3 और Q1 हमने कैलकुलेट किया और तमाम वैल्यूज़ को इधर पुट किया तो हमारे पास बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर आ गया -0.01495। Students, this is today's home task. Question number 4.23 from exercise. Solve this question. And as we have completed chapter number 4 today, practice all the questions from exercise and examples also.